Both teams having a lot of experienced campaigner in their sides. All the players are now taking their places on the field for Sahara Indians. It's been yet another wonderful day for the game of tennis cricket here at the historical Parshuram Towri Stadium in Bhiwandi. A lot of entertainment for the crowd, a lot of fun. This is going to be yet another fascinating encounter between two good sides. Yes, two openers on the ground, Captain Maggie with Akash, and he's going to be It is going to be Lakhan Patil to open the bowling for Sahara Indians. बिल्कुल लखन पाटिल को गेंदबाजी दी गई है। लखन का सामना करेंगे बैट्समैन आकाश। Nice white colors. Sahara Indians is going to be Lakhan. Turn from far end, facing him Akash. There is a loud sound of Farooq Badi. First ball tried to cut close from his body, beats him outside of his stump. Beautiful ball. Good start for the bowler Lakhan Patil. It was too close to cut. And there we watch Lakhan, facing him Akash. Up to the wicket now. Right arm over the wicket. Short rising, uppercut over the infield for 4 through the squarish third man boundary. But not on that occasion. That was rising delivery. Have a look at that. Beautifully played. Shot wide and punished. So Akash off the mark with boundary is 4 for no wicket. Very orthodox field placement. 5 fielders outside the, in fact, on the ring. And there we watch Lakhan. Turn from Haji Somerset stand end up to the wicket now. Goes to Akash, another square cut over the infield. Couple of bounces, cross the point boundary for 4. Lakhan, 2 short ball and punished by Akash, 2 consecutive boundary. Not only short deliveries, but he is also giving a lot of width to the batsman, providing the width there. Good hands from Akash. 8 without loss, first over in progress. And there we watch Lakhan reach his bowling mark. Facing him batsman Akash. He is on boundary side trick now. Lakhan. Ball this time, cross batted shot. And ball is all the way to the fence for 6. Looks in very good touch. Slog that one from outside the off stump. Look like the stroke of George Bailey. Swung away over mid wicket for 6. His score was up to 14 without loss. Lakhan reaches bowling mark, facing him batsman Akash. 2 boundaries and 6. He is on 14.
He looks under pressure now, Lakhan Patil. And there we watch Lakhan. Up to the wicket now. Goes to Akash, tucked away on the onside, nicely played. But there is the fielder in deep enough time, batsman gets one. One more to total now, 15 for no wicket, first over in progress. Very attacking and positive start from Maggie 11. Now Captain Maggie on a strike, facing Lakhan. Captain Maggie is also very good batsman. He's a stylish left-hand batsman. He can play in the gaps. Lakhan. This time check his stroke, loose bottom and push to mid off. There is the opportunity missed by Lakhan. There is a chance of run out because Akash looking for a runs, sending back from captain. And that marks end of the very exciting over. His score is 15 for no wicket. एक ओवर की समाप्ति 15 रन बिना किसी विकेट के. बहुत ही आसान सा मौका गवा दिया लखन पाटिल ने. धीमा थ्रो आया था, आसानी से उसको कलेक्ट कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए और बाल बाल बच गए आकाश. ये काफ़ी महंगा साबित हो सकता है सारा इंडियंस के लिए क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अटैकिंग मूड में है आकाश. एक ओवर 15 रन. गेंदबाजी के लिए देखना है इस एंड से किसको बुलाया जाता है, जो हमारा वीआईपी एंड है. अभी भी एक और ओवर बचा है मैंडेटरी पावर प्ले का. लखन ने अच्छी शुरुआत की थी, पहली गेंद अच्छी रही थी उनकी, लेकिन उसके बाद भटक गए. ऑफ स्टंप के काफी बाहर रूम देते रहे, जिसका लाभ उठाया आकाश ने. उसके बाद ऑन साइड में एक बहुत ही खूबसूरत छक्का जड़ा. गेंदबाजी के लिए इस वक्त बुलाया गया गेंदबाज किरण को. फील्ड की जमावट कोई स्लिप नहीं, एक शॉर्ट थर्मेन, एक पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, थोड़ा सा वाइडिश है, एक लॉन्ग ऑफ है स्ट्रेटर. पहली गेंद विद द टाइट पुल कर दिया गेंद को गैप में. बहुत बढ़िया फील्डिंग. डीप में सिर्फ एक रन. अच्छा क्रिकेट वहां पर. छोटी गेंद थी, पीछे चले गए थे, पुल जरूर किया था लेकिन डीप में बहुत बढ़िया फील्डिंग. किरण युवा खिलाड़ी है और लगता है कि पहली बार खेल रहे हैं भिवंडी सिटी क्रिकेट में. संजय स्पोर्ट्स सावत के लिए खेलते हैं. लखन पाटिल भी संजय स्पोर्ट्स सावत के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में. तो सावत के दोनों भी गेंदबाज. किरण सामना करेंगे मैगी. अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं. 16 के 16 रन इस वक्त बनाए हैं आकाश ने. कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, बहुत खूबसूरत शॉट, 4 रन. सौरव गांगुली की याद ताजा होती हुई. गजब की बल्लेबाजी कर रहे कप्तान मैगी. ये गलत. एक में तो सौरव गांगुली, लेकिन यहाँ माई कासी. यहाँ पर ये जो शॉट खेला है माई कासी की तरह. एक में तो बन गए गांगुली और दूसरे शॉट पे माई कासी.
किस किस की झलक दिखाएंगे? लाजवाब बल्लेबाजी, बॉटम एंड का अच्छा उपयोग किया। आप कह रहे हैं कि किस किस की झलक दिखाएंगे, वो झलक दिखा रहे हैं लेकिन कप्तान के हलक में आ रहा है। परेशानियां बढ़ती हुई सहारा इंडियंस की। युवा गेंदबाज पर हल्ला बोल दिया है कैप्टन मैगी ने। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए एक और गेंद को खेलना चाहते थे, ऊपरी सिरा और मैगी आउट। एलिवेशन नहीं बना था, खेलना चाहते थे मिड विकेट पे, गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग पे। पेविलियन में जाते हुए कैप्टन 10 रन बनाने के बाद स्टार्ट अच्छा मिला था लेकिन ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए। फिर से एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, ऊपरी सिरा लगा बल्ले का, काफी देर तक हवा में रही थी। अच्छा कैच। पहला विकेट गिरता हुआ मैगी आउट होके गए हैं। आउट होने से पहले 10 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया। नए बैट्समैन नितिन बल्लेबाजी को हैं, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, और क्या जबरदस्त बारी खेली थी उन्होंने पॉइनियर के सामने, 39 रनों की। और उन्होंने जो स्वीप शॉट खेला था जिलानी के विरुद्ध, सबसे अच्छा शॉट मैं कहूंगा इस टूर्नामेंट का। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, सीधा ड्राइव, ओहो अनबिलीवेबल। इस तरह के ब्लेंडर कैच हाथों में चिपक जाते हैं और बैठ गया वहां पर किरण के। ये बॉटम पर लगी थी बल्ले के, बहुत ही तेज रिटर्न कैच था। आसान कभी भी नहीं होता है फॉलो थ्रू में ऐसे कैच लेना। बहुत बढ़िया। बैट्समैन को देखिए, वो तो सोच रहे थे कि ये क्या से क्या हो गया। और गेंद भी कौन सी खेली है उन्होंने, छोड़ देते तो वाइड भी घोषित कर सकते थे अंपायर, इतनी बाहर थी। नए बैट्समैन आरिफ को ऊपर भेजा है बल्लेबाजी को। स्कोर है 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सिक्सर की विकेटों की हैट्रिक पर आए अब किरण। अगर ले लेते हैं तो जावेद फारूकी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। पलटकर वार करते हुए युवा गेंदबाज किरण। आरिफ बायत के बल्लेबाज। आरिफ भी बहुत ही क्लासिकल बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है क्योंकि दोनों भी सलामी बल्लेबाज अब आउट हो चुके हैं। देखना है कि क्या आरिफ हैट्रिक को सरवाइव करते हैं। देखना है, दोनों अंपायर्स कुछ बात कर रहे हैं वहां पर, अंपायर फारूक बर्डी और अंपायर शकील कोटी। देखना है वहां पर क्या हुआ है, खेल रुका हुआ है इस समय। विकेट कीपर हरीश ठाकरे ने अपने गेंदबाज से कुछ चर्चा की वहां पर। किरण आरिफ के लिए कदमों का इस्तेमाल किया, बच गए वहां पर आरिफ। गेंद अगर स्टंप्स को लग जाती तो जाना होता। 2 ओवर की समाप्ति, मैगे 11 टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। ये देखिए, निकल के मारना चाहता और हरीश ठाकरे का निशाना चूकता हुआ। मयूरेश स्पोर्ट्स के कैप्टन और गौसिया स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों को ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है टॉस के लिए। खेल की शुरुआत होती हुई 2 ओवर 26 रन
और 2 विकेट। हमारे बीच में ट्रिपल एस के वासु भाई हैं और सतीश, हम दोनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत ही साफ सुथरा टेलीकास्ट ट्रिपल एस पे अब तक पहुंच रहा है। उनका आभार भी व्यक्त करते हैं राजेश शेट्टी एंड कंपनी, पपिया भुई एंड कंपनी, SMP और 10 के लिए, यूट्यूब के लिए प्रिंस मूवीज। गेंदबाजी के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, पहली गेंद बहुत खूबसूरत फ्लिक स्ट्रोक, डीप में गेंद को उठाया है। 2 रन पूरे किए बैट्समैन नितिन ने। खाता खोला नितिन का। कुल स्कोर 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। पायनियर स्पोर्ट्स के विरुद्ध जो पारी खेली थी, जहां से पारी को समाप्त किया था, मानो वहीं से शुरू भी किया है। आत्मविश्वास भरा फ्लिक। दिलीप इस वक्त स्क्वायर लेग बाउंड्री पर हैं। फुल टॉस गेंद चिप करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रनों पे पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पे। कंसोलिडेशन का समय कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के लिए, पार्टनरशिप बनाने की कोशिश। हाजी समझ सेट स्टैंड की जानिब से गेंदबाजी कर रहे हैं। दिलीप शैलेश गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद स्वंग कर दिया ऑन साइड में 6 रनों के लिए। मेरे ख्याल से यही लैलेश है जिन्होंने अंजुमन ट्रॉफी में LED इनाम में जीता था। यस, लकी ड्रॉ में। लैलेश की ललचाती हुई गेंद, जिसका भरपूर लाभ उठाया आरिफ ने। स्कोर उछलता हुआ 35 पे पहुंचा है। लैलेश धीमी गेंद, पेस परिवर्तन, अच्छी गेंद थी, आगे भी रखा था। शॉट सिलेक्शन इस बार सही नहीं था आरिफ का। ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद थी। लैलेश राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए, फिर से अच्छी गेंद, गेंदों को फ्लाइट दे रहे हैं, थोड़ा गति परिवर्तन चतुराई से कर रहे हैं। लेग बाय बनता हुआ स्कोर 36 रनों पे पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पे। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। आप देख रहे हैं उप महापौर कप 2017, डेपुटी मेयर ट्रॉफी 2017। लैलेश राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, छोटी गेंद, एलिवेशन नहीं बना, खेलना चाहते थे, मिड विकेट पे गेंद गई वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, वहीं से फोर्स किया था जहां से उन्होंने अपने फ्रंट फुट को कमिट किया था। 3 ओवर समाप्त, स्कोर है 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पे।
12.33 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनते हुए मैगी 11 के लिए। पहली 9 गेंदों पर 26 रन आए थे, कोई भी विकेट नहीं गिरा था। उसके बाद की जो 9 गेंदें रही है उसमें दोनों भी सलामी बैट्समैन आउट हुए और सिर्फ 11 रन बने। तो शुरुआत दमदार रही मैगी 11 की, लेकिन उसके बाद खेल धीमा होता हुआ 12 की रफ्तार को यदि जारी रखते हैं बल्लेबाज तो एक अच्छा स्कोर बनेगा 61 रन। विकेट काफी हाथ में है तो उससे भी ज्यादा सोच रहे होंगे, और वैसे भी नितिन बहुत अच्छे स्ट्राइकर है टेनिस क्रिकेट बॉल के। चार पर इस समय खेल रहे नितिन, आरिफ खेल रहे 6 रन बनाकर। आउट होने वाले बल्लेबाजों में कैप्टन मैगी 10 रन बनाए थे और आकाश जिन्होंने 16 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को। डिप्टी मेयर ट्रॉफी 2017 का ये चौथे दिन का खेल, आज का 5वां मैच इस समय आप देख रहे हैं। किरण आक्रमण जारी रखते हुए 2 सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं अपने पहले ओवर में, 11 रन खर्च किए थे। सामना कर रहे नितिन, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट किरण आगे रखा हवा में और सीधे एक्स्ट्रा कवर की गोदी में, लेकिन कैच छूटता हुआ, आसान सा कैच। मेरे ख्याल से वहां पर कप्तान थे करण जिनसे कैच छूटा है। बहुत तेज ड्राइव था लेकिन सीधा उनके हाथों में आ गया था। ये देखिए बहुत ही ताकतवर स्ट्रोक था, एक्स्ट्रा कवर पे पहले ही हाथ बंद कर लिए। किस्मत वाले रहे नितिन, जीवन दान मिला उनको। लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर खिलाड़ी, थोड़ा सा उसको अब बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लाया जा रहा है। लपेटने की कोशिश, बीट किया आरिफ को। पिछले ओवर में भी इस तरह से बीट किया था। लगातार ऑन साइड पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर गेंदबाजी कर रहे हैं किरण। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अच्छी सोच किरण की। 5 गेंदें खेली है जिसमें से 4 डॉट बॉल्स खेले हैं आरिफ ने। एक और अच्छी गेंद, फुलर लेंथ ड्राइव किया है ऑन साइड में। दिलीप पाटिल है लॉन्ग ऑन पर, केवल 1 रन। कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिल रही है पिछली कुछ गेंदों से हम देख रहे हैं। दिलीप पाटिल अपने गेंदबाज का उत्साह बढ़ाते हुए, हरीश ठाकरे विकेट कीपिंग का जिम्मा उठाए हुए। एक खिलाड़ी शॉट फाइन लेग और एक खिलाड़ी शॉट थर्ड मैन पर है। एक एक्स्ट्रा कवर, बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ पर फील्डर। अच्छा फुटवर्क, बहुत ही अच्छा फुटवर्क वहां पर दिलीप पाटिल का। रन्स बचाते हुए अपनी टीम के लिए 2 शर्ती या 2 रन बचाए हैं। बहुत तेज आई थी गेंद आउटफील्ड में और पूर्वानुमान बहुत अच्छा था। ये देखिए बहुत ही करारा ड्राइव था, कड़क शॉट था, बहुत पिछले पांव पे जाके खेला था। और ये देखिए दिलीप पाटिल को सेविंग 2 रन्स फॉर हिज साइड। लॉफ्टेड शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे किरण। बेहतरीन गेंद और ये निश्चित रूप से विकेट का पतन। लौटते हुए पेविलियन की तरफ नितिन। ने विकेट को फेंका है वहां पर। मैं समझता हूं जिस तरह से पीछे भी नहीं मुड़े थे नितिन। नए बैट्समैन बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन मयूर बल्लेबाजी को आए हैं। कितनी गेंदे, अब कितना 7 गेंदे बची है कुछ करने के लिए। शुरुआत बहुत अच्छी थी, आकाश और मैगी ने दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मिडल है, अंत अच्छा नहीं हो रहा है इनिंग का। 5 गेंदों में केवल 4 रन आए हैं इस ओवर से।
बहुत ही किफायती ओवर साबित होता हुआ किरण का। मयूर अपने बड़े बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। फुल टॉस लेकिन मिस टाइम, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे। ओ, लखन पाटिल के हाथों से कैच छूटता हुआ, थोड़ा ज्यादा आगे आ गए थे। जीवन दान मिलता हुआ मयूर को, 2 रनों से उन्होंने अपना खाता खोला। ओवर की समाप्ति, सफल ओवर समाप्त हुआ, 43 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मयूरेश स्पोर्ट्स के कैप्टन और गौसिया स्पोर्ट्स के कैप्टन दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है। आसान सा मौका गवा दिया लखन पाटिल ने, अच्छे फील्डर है लेकिन इस बार गलती कर बैठे, जज नहीं कर पाए थे ठीक तरह से। कल दोस्तों पहला मुकाबला रहेगा गैबन शाह और एनआर के बीच में, दूसरा मुकाबला वीरेन और जॉली का बड़ा मैच। कल तीसरा मुकाबला विहान मित कुमार और फ्रेंड्स स्पोर्ट्स, 43 रन हो चुके हैं, 43। कल चौथा मुकाबला, ये बड़ा मुकाबला है, मतीन स्पोर्ट बनाम भोलेनाथ स्पोर्ट्स। कल पांचवा मुकाबला मराठा पंजाब और सरकार स्पोर्ट्स, और कल आखिरी मुकाबला मैच ऑफ इवनिंग धनेश कुकसे और अंजुमन स्पोर्ट्स। सलीम सिद्दीकी साहब हमसे जुड़ते हुए, पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी के भिवंडी शहर के अध्यक्ष हैं, आपका इस्तकबाल है। जावेद फारूकी साहब भी हमसे जुड़ते हुए। इरशाद कुरैशी वाइड से शुरुआत करते हुए गेंदबाज। छह गेंदें बची है अभी भी पारी में। लोअर फुल टॉस, अच्छा ड्राइव ऑन साइड में, वाइड ऑफ डीप मिड विकेट। दिलीप पाटिल वहां पर पहुंचे, अच्छा थ्रो उनका, अच्छा क्षेत्र रक्षण और अच्छा थ्रो, केवल एक ही रन। यहां से और 10-12 रन जरूर बनाना चाहेंगे बल्लेबाज, और गेंदबाज की कोशिश होगी कि उतने रन ना बनाने दिए जाए। महेश गेंदबाजी कर रहे हैं आखिरी ओवर में, हाजी समझ से ट्रेंड से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। सामना कर रहे हैं मयूर। लेन बॉल पूरी तरह से चकमा खाते हुए ऑन साइड में खेलने का इरादा था। लाइन बहुत बढ़िया, चौथे स्टंप की लाइन जो होती है ऑफ स्टंप के बाहर, वो बहुत अच्छी लाइन रहती है किसी भी गेंदबाज के लिए, चाहे फिर क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट क्यों ना हो। गेंद ऐसा लगा बैट्समैन को शायद कि अंदर की तरफ आएगी, लेकिन पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। राउंड द विकेट कर रहे हैं तो एंगल कहीं ना कहीं बैट्समैन सोच रहे हैं कि अंदर की तरफ आएगा। इस बार लोअर फुल टॉस ड्राइव करते हुए ऑन साइड में वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ लखन का थ्रो आता हुआ, सिर्फ 1 रन। पिछली 12 गेंदों से हम देख रहे हैं कि कोई भी चौका या छक्का देखने को नहीं मिला है, केवल सिंगल और डबल्स की मदद से रन आगे बढ़ रहे हैं।
हवा में उछाल दिया है, मिस टाइम शॉट, कोई गलती नहीं लॉन्ग ऑफ पर। अनंता केने पहुंचे वहां पर और एक अच्छा कैच लिया। सफलता मिलती हुई महेश को, चौथा नुकसान मैगी 11 को। आरिफ ने बनाए केवल 8 रन। संघर्ष कर रहे थे, काफी डॉट बॉल्स भी खेली थी उन्होंने अपनी पारी में, 4 डॉट गेंदें खेली थी, एक छक्का जड़ा था, लेकिन उसके अलावा देखे तो सफाई से खेल नहीं पा रहे थे। खेलना चाहते थे बॉलर के सिर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ की दिशा में चली गई गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक था। एक अच्छा कैच वहां पर कंप्लीट किया अनंता केने ने। 46 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज कुणाल। मैगी 11 ने जिस तरह की शुरुआत की थी उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि 5 ओवर में शायद 70 की तरफ देख रहे बल्लेबाज, एक बड़ा स्कोर बनेगा, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है अभी तक। मिडिल ऑर्डर में जो बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए, उन्होंने निराश किया। मयूर इस समय 3 रन बनाकर स्ट्राइक पर। बहुत ही खूबसूरती के साथ कट किया है, हालांकि ज्यादा जगह नहीं थी, लेकिन एक अच्छा शॉट, गैप नहीं ढूंढ पाए, डीप में खिलाड़ी तैनात, सफाई से फील्ड किया था किरण ने, केवल 1 रन। अच्छी कप्तानी कप्तान करण की, गेंदबाजों ने अच्छा साथ उनका दिया है, क्षेत्र रक्षण अच्छा देखने को मिल रहा है सारा इंडियंस का। आखिरी गेंद शेष है इस पारी में और अब 50 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल लग रहा है। 50 को छूना है तो एक बड़ा शॉट खेलना पड़ेगा। स्कोर 47 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। कुणाल के पास मौका है आखिरी गेंद का सामना करने का। महेश फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए। पारी की अंतिम गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, यॉर्कर लेंथ, अंदरूनी सिरा बल्ले का, केवल 1 रन, स्क्वायर लेग की दिशा में चली गई थी गेंद। तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही आखिर के 3 ओवर्स में, खासतौर पर किरण और महेश ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। पारी की समाप्ति होती हुई 48 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। मैगी 11 सहारा इंडियंस के सामने चुनौती है 5 ओवर्स में मैच जीतने के लिए 49 रनों की। आइए अब आपको लेकर चलते हैं टॉस बॉक्स में, आज के आखिरी मैच के टॉस की तरफ। ओवर टू सिद्दीक भावे। धन्यवाद अजय गरत। आइए दोस्तों, दोनों कैप्टन मेरे साथ हैं इस वक्त, बाला मयूरेश के इम्तियाज गौसिया स्पोर्ट्स के हमारे बीच टॉस के लिए इस वक्त आते हुए पैंथर्स पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के भिवंडी शहर के अध्यक्ष सलीम सिद्दीकी साहब, और साथ ही साथ वो हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर भी हैं। हिट कहना है वहां पर और आया ठेले। पहले बताइए, आप पहला मुकाबला खेल रहे हैं और उप महापौर चषक में, कैसा लग रहा है गौसिया के कैप्टन इम्तियाज को? अच्छा लग रहा है खेलने के लिए, अच्छा टूर्नामेंट है। आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करना चाहेंगे। बल्लेबाजी करके कितने कम से कम रन बनाएंगे? कम से कम 60 प्लस जाना चाहेंगे। ये बताइए कि 60 प्लस तक जाने के लिए मैंडेटरी पावर प्ले में कौन से बैट्समैन है जिन पे आप ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं? साजिद है, आरिफ है, भोला है। तो हम ये समझे कि शाम में आप चुनौतियां देने जा रहे हैं मयूरेश को। हाँ, इंशाल्लाह हम ज़्यादा ज़्यादा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। बाला, शाम का समय है, दर्शक बढ़ चुके हैं, शाम भी बढ़ चुका है। अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? बैट करते थे। लेकिन अब आपको फील्डिंग करना है। ये बताइए कि गौसिया नई टीम है, लेकिन नई टीमों ने तो कहीं बड़े अपसेट किए, तो कहाँ तक रोकना चाहेंगे? 40 या 45। ये बताइए कि आज टीम पूरी ताकत के साथ आई है या कुछ खिलाड़ी कम है? नहीं, आज पूरी ताकत के साथ आई और हम कमेटी का आभार करते हैं कि उन्होंने हमारे सपोर्ट किया इसमें। और ये बताइए कि उप महापौर कप कई दिनों से बहुत खूबसूरती के साथ चल रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं? हाँ, इंजॉय कर रहे हैं, क्लाइमेट भी अच्छा है और इंजॉय मैच में आएगा। All the best. The news from the toss box is
Gausia won the toss, they decided to bat first. धन्यवाद सिद्दीक भावे। गौसिया स्पोर्ट्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है अगले मैच के लिए। उनचास रनों की चुनौती इस समय मैच को जीतने के लिए सहारा इंडियंस के सामने रखी है मैगी 11 ने। So back to cricket now on VIP dice. Salim Siddiqui with us, Irshad Qureshi, the Burak Welfare Society Vice President, lot of name there. Welcome everybody in Deputy Mayor Cup 2017. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि कल का जो पहला मुकाबला है वो 8 बजे शुरू होगा गैबन शाह और एनआर के बीच में। बोरपारा पे हमारा टेलीकास्ट साफ सुथरा नहीं पहुंच रहा है, वहाँ के ज्वाइंडर से रिक्वेस्ट है कि इस टेलीकास्ट को पहुंचाए। डेन चैनल पे हमारा टेलीकास्ट बोरपाड़ा में साफ सुथरा नहीं पहुंच रहा है, उनके ज्वाइंडर से रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीकास्ट को साफ सुथरा पहुंचाए प्लीज। सो बैक टू क्रिकेट नाउ, द टारगेट इज 49. What a magnificent start and what a shaky finish from Maggie 11. First 3 overs they are on top and then later in slog over they are struggling. Collapse there totally. First over 26 runs and then 3 overs 37 and then poor performance. Similar story was there in the first game as well against Pioneer Sports. They scored 50 runs in first 3 overs and 12 runs in last 3 overs. Two openers on the ground, Samir Tangdi is a very good stroke player. Samir Tangdi. Lakhana and Samir Tangdi. And I think Sara Indians changed their strategy. They are sending both pinch hitter. They want to take the advantage of mandatory power play. First ball. Ball this time goes his back foot and tapped as ball in the gap. They go for one. And I think Arif is there. Enough time batsman gets 2. So Lakhan off the mark with 2. And Sara Indians 2 for no wicket. Good call from Lakhan Patil and well responded in the end by Samir Tangdi. Lakhan is very quick between the wickets.
And there we watch Sajid, who is the one of the good bowler in power play, always breakthrough for Maggie 11 in past matches. Left arm over the wicket. Raju is slightly disappointed because not a huge total made by Maggie 11. Left arm over the wicket. Goes to Lakhan, uses his feet, picks on the half volley. There's a misfield by captain, I think, and ball is racing all the way to the long off fence for 4. Harikesh, being the fielder, is the guilty man at mid-off. Very sloppy work. This is the poor fielding. Lakhan used his feet right on the half volley under the eye, driven a carpet drive. But misfield, look at that. That's gone through the gates. This time short goes his back foot, pulls it. There's the fielder at deep backward square leg. In comes return. Finally batsman settled for 1. 1 to score now. His score moves up to 7. And I think this is the positive reply from Sahara Indians. Lakhan Patil is known for his big hitting. Samir Tangdi is also a good stroke player. Now Samir Tangdi on his strike. And there we watch Sajid. This time reverse shot, predetermined stroke, ball is racing to deep point and couple of bounces cross the fence for 4. Gets off the mark in style. Premeditative stroke, using the power play quite well. Second boundary of the over. Sahara Indians now 11 runs without loss. This is the positive reply from Sahara Indians, and I think Maggie in trouble now. 11 without loss. They badly need a breakthrough here. Sajid. Ball this time swept away, beautifully played, 4 runs, because ball is on the foot of Samir Tangdi, who played a beautiful lap sweep for 4. Fantastic start for Sahara Indians. Back-to-back boundaries for Samir. Finally was up in the circle. It placed it beautifully. Now Maggie in trouble now, runs coming very easily, 15 without loss. Proving expensive today, Sajid Ansari. Sajid. Goes to Tangdi, reverse shot over the infield. Once more, couple of bounces, well cut off from Akash. And finally, Tangdi gets 2. Tangdi playing improvised stroke. Nice start for Sahara Indians. 1 gone, it's 17 without loss. 1 ओवर 17 रन. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हम देख रहे हैं. समीर तांगड़ी 10 पे खेल रहे हैं. लखन ने 7 रन बना रखे हैं. जब पहले ओवर में 17 आएंगे तो स्थिति कुछ ऐसी होती है कि 11 के 11 जमा हो जाते हैं. राजू को देखिए, काफी निराश हैं मैगी के सपोर्टर. यही शुरुआत की थी मैगी ने, लेकिन अंत आपको अच्छा करना है क्योंकि आप एंडलेस क्रिकेट खेल रहे हैं. वैसे भी कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला. 15 रन बनाए थे पहले ओवर में मैगी 11 ने. निहाल शेख जुड़ते हुए हमसे आपका इस्तकबाल है. अंजुमन के स्कोर है 17 रन बिना किसी विकेट के. मरता क्या ना करता, आकाश को गेंदबाजी दी गई है. विकेट टेकर गेंदबाज हैं मैगी के.
5 खिलाड़ी ऑफ साइड में लगाएं। एक गली है, एक पॉइंट है, एक कवर है, एक एक्स्ट्रा कवर है, एक स्ट्रेट मिड ऑफ है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मर्तबा स्लॉक करने की कोशिश, गेंद विकेटों के पीछे जा रही है, खराब फील्डिंग वहां पर, 2 रन पूरे। कोई इशारा नहीं अंपायर का, 19 पे पहुंचा स्कोर। बल्ले से लगी थी गेंद, सिरा लगा था बल्ले का, अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश की थी लखन ने। आकाश, बहुत अच्छी गेंद टर्न होकर जाती हुई विकेट कीपर के पास। आकाश में क्षमता है कि वो तेज टर्न भी प्राप्त कर लेते हैं, फ्लाइट भी देते हैं कभी कभी, और मीडियम पेसर की तरह भी गेंदे करते हैं, तो विविधता है उनके पास। आकाश राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए कदमों का इस्तेमाल किया, निकल के मारने की कोशिश, अपील कोर्ट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर सहमत नहीं। बहुत अच्छी गेंद थी, फ्लाइट दिया था, बैट्समैन को इनवाइट किया था अपनी क्रीज के बाहर आके ड्राइव लगाने के लिए। ये देखिए लगाने की कोशिश भी की थी। अच्छा निर्णय अंपायर का। थोड़े से कठिनाइयों में अब आते हुए लखन पटेल 2 लगातार डॉट बॉल्स खेल चुके हैं। लखन लेग ब्रेक गेंदबाजी के सामने वैसे भी वो थोड़े कमजोर बल्लेबाज हैं। इस मरतबा आने दिया, टैप किया, 1 रन। थोड़ी सी राहत की सांस ली होंगी लखन ने, ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं। बिल्कुल, अंधेरी गली में बच्चा सीटी बजा के गुजर जाता है, बल्लेबाज भी जब 1 रन लेते हैं तो दूसरे सिरे पे जाते हैं। आकाश, ये देखिए फ्लिक फ्रंट फुट पे आकर टांगों में गेंद थी तांगड़ी के और वो आउट हो गए डीप मिड विकेट पर। बिल्कुल टांगों के सामने से खेला था गेंद को, ऑफिस टॉस। चहलकदमी करते हुए आगे निकले थे, तेज गेंद थी, अंदर की तरफ आ रही थी पड़ने के बाद। कलाइयों का उपयोग किया लेकिन सीधे सुरक्षित हाथों में खेला कुणाल के। कुणाल बहुत अच्छे कैचर है, उनके हाथों से बहुत कम कैच छूटते हैं। नए बैट्समैन हरेश ठाकरे। ये बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, पिछले बाली ट्रॉफी में 6 गेंदों में 6 चौके लगाए थे। आतिश पाटिल भी उस सब में, नंदन पाटिल ने 2 मरतबा सिटी क्रिकेट में वो कारनामा अंजाम दिया है। वैभव पाटिल ने भी 6 गेंदों पे 6 चौके लगाए थे। अच्छी गेंद बीट किया वहां पर, ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा कुल रन बने 20। अब मैच में वापसी करती हुई मैगी। बेहतरीन गेंदबाजी आकाश की, सिर्फ 3 रन दिए और एक महत्वपूर्ण सफलता अपनी टीम को दिलाई उन्होंने। लखन पाटिल अपनी पारी में अभी तक 3 डॉट गेंदे खेल चुके हैं, 1 चौका जड़ा है उन्होंने। 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 रन बनाकर आउट हुए समीर। हरेश ठाकरे ने अभी तक किसी भी गेंद का सामना नहीं किया है। 18 गेंदे और यहां से और 29 रनों की जरूरत। बॉलिंग आक्रमण अच्छा है मैगी के पास। मयूर अब अटैक पर आते हुए, आवश्यक रन रेट अभी भी 10 के नीचे ही है। पहले ओवर में धुआंधार बैटिंग देखने को मिली, लेकिन दूसरे ओवर में रनों पर अंकुश लगाया आकाश ने।
यहाँ से हम देखें तो आने वाले बल्लेबाजों में अनुभवी दिलीप पाटिल, अनंता केनी, विनोद शायद आज नहीं खेल रहे हैं। किरण जो कि युवा ऑलराउंडर है, वो भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इस समय विक्की मात्रे ने ऑल द बेस्ट कहा है मैगी 11 को, और खास तौर पर ऑल द बेस्ट कहा है कुणाल को। कल विक्की मात्रे ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की धनेश 11 के लिए। दबाव की परिस्थितियों में 17 रनों की नाबाद मैच जिताऊ पारी खेली। हरीश ठाकरे स्ट्राइक पर, मयूर की पहली गेंद स्वीप करने की कोशिश, अपील वहां पर, लेकिन अंपायर का मानना है कि लेग स्टंप को मिस कर रही थी गेंद, लेग बाय का इशारा। फुल टॉस गेंद को खेलने से चूक गए थे। ये ओवर काफी महत्वपूर्ण है। ज्यादा रन यदि इस ओवर में नहीं बना पाते हैं सहारा इंडियंस के बल्लेबाज, तो आने वाले ओवर्स में निश्चित रूप से दबाव हो सकता है उनके ऊपर। क्लीन बॉल्ड, परफेक्ट यॉर्कर। मयूर का ये जो ओवर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लसित मलिंगा और भिवंडी, क्योंकि ये बहुत तेज गेंदें करते हैं। ये देखिए फिर से साइड आर्म किया था, अपने आप को यॉक कर लिया बैट्समैन ने, क्लीन बोल्ड हो गए। बहुत देर से काफी कठिनाइयों में थे लखन, और जब लखन ने कहा कि माय नेम इज लखन, तो मयूर ने बता दिया कि आपके जाने का समय है। दिलीप पाटिल ऊपर आए हैं, ये अच्छे स्ट्राइकर हैं। पिछले कुछ समय से परेशानी में थे, लगातार डॉट बॉल्स भी खेल रहे थे, तो दबाव बन रहा था। दबाव को हटाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन अपना विकेट गंवाकर पेविलियन में लौटे। 10 रन बनाए लखन पाटिल ने। 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर इस समय सहारा इंडियंस। हवा में खेला है, लेकिन फील्डर काफी दूर है, आसानी से सिंगल मिलता हुआ। खाता खुला दिलीप पाटिल का 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर, धीरे धीरे ये मुकाबला रोचक स्थिति में पहुंचता हुआ। एक बैकवर्ड पॉइंट शॉट, फाइन लेग शॉट, थर्ड मैन। रिवर्स खेलने की कोशिश, विकेट कीपर से रुकी नहीं है, लेकिन स्लिप की दिशा में शॉट थर्ड मैन के फील्डर ने उठाया था, कोई रन नहीं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग था। सो कर रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे हरीश ठाकरे। ये भी शॉट्स आ जाएंगे कुछ दिन में क्रिकेट में, स्लीपिंग स्वीप। फॉलिंग स्वीप तो हमने देखा है, स्लीपिंग स्वीप हो सकता है। क्रिकेट तो बहुत बदल रहा है। इस बार मोड़ दिया है गेंद को, लॉन्ग लेग पर खिलाड़ी तैनात है सलमान वहां पर। केवल 1 रन, दिशा से थोड़ा सा भटके थे, मौका जरूर था बैट्समैन के पास, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ा हुआ 23 रन। केवल 3 रन अभी तक इस ओवर से आए हैं, पिछले ओवर में भी केवल 3 रन बने थे। मयूर के ओवर में अभी भी 1 गेंद शेष। कुल मिलाकर 13 गेंदें बची है और 26 रनों की जरूरत। ओवर की आखिरी गेंद हल्के से टैप किया है, 1 रन। इससे पहले कि विकेट कीपर अपनी दाई तरफ जाते हुए गेंद को फील्ड करते। किफायती ओवर की समाप्ति, 3 के बाद 24 पर 2 सहारा इंडियंस।
अब मैच में पूरी तरह वापसी करती हुई मैगी 11 इस ओवर में बहुत ही कंजूस भरी गेंदबाजी की, सिर्फ 4 रन दिए। 2 ओवर में कितने रन चाहिए साहिबा? 25 रन चाहिए। डू और डाई, करो या मरो। पहले ओवर में जब 17 रन बने थे, आवश्यक रन रेट 8 का हो चुका था, लेकिन अब देखिए 12.50 का हो चुका है प्रति ओवर। खेल लगातार बदलता हुआ, आंकड़े लगातार बदलते हुए, यही तो रोचकता है क्रिकेट की। समीकरण लगातार बदलते रहते हैं। वसीम नजर आते हुए वीआईपी डाइस पर। दोनों भी अच्छे स्ट्राइकर है टेनिस क्रिकेट बॉल के। इस समय क्रीज पर आकाश को कंटिन्यू रखा है मैगी ने। तो आखिरी ओवर की जो जिम्मेदारी रहेगी एक नए गेंदबाज के ऊपर रहेगी, क्योंकि 5 ओवर के खेल में एक ही गेंदबाज अपना कोटा पूरा कर सकता है 2 ओवर का। पिछले मैच में आरिफ ने आखिरी ओवर किया था मैगी के लिए। लॉफ्टेड शॉट, गेंद हवा में, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन पहुंचती हुई, फील्डर वहां पर, केवल 1 रन। बड़े शॉट्स की जरूरत इस समय सहारा इंडियंस को। मैगी 11 के कैप्टन चाह रहे हैं कि बड़े शॉट्स ना लगे, गेंदबाजों की भी कोशिश की बाउंड्री बचाई जाए, बाउंड्री ना दी जाए बल्लेबाजों को। और सही सोच भी है, बाउंड्री यदि नहीं देते हैं गेंदबाज, बाउंड्री बॉल नहीं देते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल मैच को जीतना सहारा इंडियंस के लिए। आज का ये 5वां मुकाबला, इसके बाद आज का आखिरी मैच आप देखेंगे। फ्लाइटेड गेंद, ड्राइव किया, ठीक गेंद के ऊपर आते हुए ड्राइव लगाया था, लेकिन सीधे फील्डर के पास सिंगल। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आकाश, आगे रख रहे हैं बैट्समैन को, दावत दे रहे हैं बाहर आके ड्राइव लगाने की, लेकिन लाइन बहुत अच्छी पकड़ी उन्होंने ऑफ स्टंप और उसके करीब गेंदों को रख रहे हैं। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आकाश, इस बार शॉट रखा, गगनभेदी शॉट, उस पर 6 रन। छोटी गेंद थी, टर्न होने का इंतजार किया, बैकफुट पे चले गए, पुल और पावरफुल गेंद होती हुई मिड विकेट बाउंड्री के पीछे गुल, 6 रन। दमदार शॉट, जिसकी सख्त जरूरत थी वही करते हुए अपने टीम के लिए दिलीप पाटिल। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 32 रन। अब 17 रन चाहिए बची हुई 9 गेंदों पर। दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ती हुई। इस बार तेज रखा था, फुलर लेंथ गेंद, ड्राइव करते हुए ऑन साइड में, दूसरे की कोशिश, जोखिम भरा हो सकता है, थ्रो को नहीं गैदर कर पाए विकेट कीपर मैगी, और 2 रन आखिरकार पूरे होते हुए 1-1 रन कीमती। लेकिन जोखिम तो लेना ही होगा, हालांकि रनआउट हो जाते अगर थ्रो सीधा हाथ में बैठ जाता। अच्छा थ्रो आया था डीप से कुणाल का। अब मुकाबले में रोचकता बढ़ती हुई, 34 रन बने और कुल 8 गेंदों में 15 चाहिए। मैच में वापसी करती हुई सहारा इंडियंस। 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में, थोड़े से महंगे साबित होते हुए आकाश। बैकफुट पर जाकर ड्राइव किया है, 1 रन पूरा, दूसरे की कोशिश, और बहुत बढ़िया दौड़। गेंदबाज वाले छोर पर थ्रो पहुंचता हुआ, लेकिन थ्रो आने से पहले ही पहुंच गए थे वहां पर हरेश ठाकरे। अच्छा तालमेल दोनों भी बल्लेबाजों के बीच में।
बात है कि आकाश अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं और जहाँ पे मयूर ने एक ओवर किया है, कोई नए गेंदबाज को गेंदबाजी करना होगी। जहाँ पे आरिफ ऑप्शन है, कुणाल है और आकाश जूनियर। तो विकल्प काफी है। महत्वपूर्ण गेंद, 7 गेंदें और 13 रन चाहिए। सीधी निकल गई बल्ले के नीचे से, डॉट बॉल। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति 4 के बाद 36, 2 विकेटों के नुकसान पर सहारा इंडियंस। आखिरी ओवर में 13 रनों की जरूरत। ये जो इक्वेशन है ये कई मर्तबा आया है। 13 रन चाहिए आखिरी ओवर में। ये सिद्दीकी साहब को आप देख सकते हैं, सलीम सिद्दीकी, मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर और पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी भिवंडी शहर के अध्यक्ष भी हैं। ड्रिंक्स लेते हुए खिलाड़ी, वहां पर एक हडल भी नजर आ रही है मैदान में। मैगी 11 की सोच विचार हो रहा है। कैप्टन मैगी अपने अनुभवी खिलाड़ियों से भी कहीं ना कहीं राय ले रहे होंगे कि किस गेंदबाज को आखिरकार जिम्मेदारी सौंपे। बिल्कुल, और देखना है कि कौन सा गेंदबाज अपने हाथों में गेंद लेता है और किसको ये कमान थमाई जाती है। और आरिफ ने टोपी थमा दी अंपायर फारूक बर्डी को। वो इसलिए क्योंकि कैप्टन ने गेंद उनको थमा दी है, यानी कि आरिफ गेंदबाजी करेंगे आखिरी ओवर में। नहीं, पॉइनियर के सामने बहुत ज्यादा रन चाहिए थे, मेरे ख्याल से 19 चाहिए थे। और आखिरी गेंद पर फुल टॉस गेंद पर बोल्ड हो गए थे ऋषि पटेल। विकेटों की कोई ज्यादा चिंता नहीं है यहाँ पर सहारा इंडियंस को। 8 विकेटें अभी भी हाथ में है। 6 गेंदें और 13 रन। समय लिया जा रहा है आखिरी ओवर के लिए। आज का आखिरी मुकाबला इस मैच के बाद गौसिया स्पोर्ट्स और मयूरेश के बीच में। एक शॉट फाइन लेग हरीश ठाकरे के लिए। एक शॉट थर्ड मैन थोड़ा सा वाइड कर दिया उसको। अभी भी कैप्टन श्योर नहीं है कि किस खिलाड़ी को अंदर रखना है और किस खिलाड़ी को सर्कल के बाहर रखना है। पॉइंट को पीछे ढकेला, बैकवर्ड पॉइंट डीप में, कवर को अंदर लिया, वाइडिश लॉन्ग ऑफ। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 5 ऑन साइड में। आरिफ अपनी पहली गेंद लेकर स्वीप कर दिया है। लॉन्ग लेग पर खिलाड़ी तैनात है। सफाई से फील्ड किया गया, केवल 1 रन। अब 5 गेंदें और 12 रन। और अजय गरत, ये जो समय, ये लगता है कि ऐसा समय हो चुका है हमेशा परशुराम टॉरे स्टेडियम पर, जहां मैचेस काफी क्लोज हो जाते हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि समय को भी अब आदत सी हो गई है। स्ट्राइक दिलीप पाटिल के पास। आरिफ लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। बल्ले का सिरा, बढ़िया कोशिश लेकिन कैच नहीं कर पाए कैप्टन मैगी। हाफ चांस था ये, तो मैं हाफ चांस कहूंगा। बहुत बढ़िया कोशिश की थी कप्तान मैगी ने, अपने आप को झोंक दिया था वहां पर। लेकिन इस तरह के कैचेस इतने आसान नहीं रहते। जब मोटा सिरा लेकर बल्ले से गेंद आती है तो बहुत तेज निकल जाती है। ये देखिए, पूरे रीच को यूज किया था उन्होंने। मैं तो समझता हूं कि 3 रन बचा दिए। कैच जरूर छूटा है और कहीं ऐसा ना हो कि दिलीप पाटिल विलन बन जाए मैगी 11 के लिए। 4 गेंदों में अब 11 रन चाहिए। कुछ भी हो सकता है। एक सुपर ओवर देख चुके आज हम।
बढ़िया गेंद। आरिफ की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। महत्वपूर्ण डॉट बॉल। ऑन साइड में उठाने की कोशिश हरीश ठाकरे की। कोई भी बड़ा स्ट्रोक हरीश के बल्ले से इस पारी में अभी तक देखने को नहीं मिला है और अब तो बड़ी शॉट की जरूरत है। 3 गेंदें और 11 रन। आप दबाव आता हुआ हरीश ठाकरे पे, वंडर स्पोर्ट्स के लिए भी खेलते थे वो। करारा ड्राइव आउटफील्ड में 1 रन बनाए, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब तो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है दिलीप पाटिल ने। दूसरे रन की कोशिश भी नहीं की उन्होंने। 2 गेंदों में 10 रन चाहिए। बालाजी और उस्मानिया का जो मैच हुआ था उसमें 2 गेंदों में 11 चाहिए थे। जयेश ने छक्का और चौका जड़ा था, मैच टाई हुआ था। यहां पर क्या होगा? बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आरिफ, अनुभव झोंकते हुए अपना। एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। उछाल दिया गेंद को, 6 रन स्टेडियम के बाहर। कहां गई? लगी तो मैच को जीता जाएगा यहां से, लेकिन सुपर ओवर नहीं हो सकता। ये देखिए ताकतवर स्ट्रोक, गेंद बल्ले से टकराई जा रही है, जा रही है, जा रही है, हवा से बातें करते हुए बहुत दूर, कहीं 6 रन। एक बात है कि यहां से मुकाबला सुपर ओवर में नहीं जा सकता है। कल भी मैंने कहा था जब पॉइनियर बनाम मैगी खेल रही थी परसों, यही कुछ सिचुएशन थी। 1 गेंद में 4 ही चाहिए थे और आरिफ ही थे। फर्क इतना है कि उस वक्त ऋषि पटेल थे और दिलीप पाटिल है। सुपर ओवर में भी तो जा सकता है, 3 रन भी तो बन सकते हैं, खेल है। नहीं, ये जो ऑप्शन है, रास्ता खुला हुआ है, वो दरवाजा भी खुला हुआ है, लेकिन वो दरवाजे की कड़ी मुश्किल से खुल सकती। या तो यहाँ मैगी जीतेंगी या तो यहाँ सारा इंडियंस जीतेंगी। बिल्कुल, 4 रन 6 रन बनाना आसान होता है, 3 रन बनाना मुश्किल ही होता है। नहीं, मैं तो कहता हूं कि आखिरी गेंद पर 1 रन बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। सबसे 6 लग सकता है, 7 गोल्डन 6 लगे, 2 गोल्डन बाउंड्री लगी। 1 और 2 रन जब चाहिए होते हैं तो दुविधा में बैट्समैन रहते हैं, बड़ा शॉट खेले या फिर नच करके रन्स लिए जाए। यहाँ पर दुविधा नहीं है, 4 रन चाहिए, लेकिन खेलेंगे कहाँ पर, यह भी सवाल है। आरिफ की क्या सोच रहेगी, आइए देखते हैं। आखिरी गेंद मैच की, स्लॉग, गोल्डन 6, 8वां गोल्डन 6, 8वां गोल्डन 6 दिलीप पाटिल ने जड़ दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन सारा इंडियन, बबन पाटिल, भालचंद्र बीसी पाटिल and the captain of सारा इंडियंस, हार्ड लक मैगी। परसों आरिफ बच गए थे ऋषि के हाथ से, लेकिन आज दिलीप पाटिल ने गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। गजब की बल्लेबाजी। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है दिलीप पाटिल। कैच छूटा था उनका आखिरी ओवर में कैप्टन मैगी के हाथों से, और आखिरकार विलन बन गए मैगी 11 के लिए। 8वां गोल्डन 6 लगता हुआ गजब का शॉट। दिलीप पाटिल आपको आगे आना है मैन ऑफ द मैच। नौवां टूर्नामेंट है और 8वां गोल्डन 6 लगा है, 9 अर्धशतक लगे। आइए दिलीप पाटिल, आपको दिलीप पाटिल कम फॉरवर्ड प्लीज। सबसे पहले एम मुस्लिम साहब, आपको मोहम्मद मुस्लिम साहब ये रिस्ट वॉच देंगे। शहबाज शेख स्पॉन्सर, उसके बाद साजिद शेख जो कि पैंथर्स पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। उसके बाद पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष सलीम सिद्दीकी साहब आपको ये ट्रॉफी देंगे। और आखिर में बुराक वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी कामरान खान आपको
ये मिठाई देंगे। गजब का मुकाबला, गजब का शॉट। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन दिलीप पाटिल, अनेक अनेक अभिनंदन। दिलीप ये बताइए, आखिरी गेंद में 6 चाहिए, बाउंड्री चाहिए, अलग सोच रहती, लग जाती, लेकिन 2 गेंदों में जब 10 चाहिए थे और 2 सिक्सर आपने लगाए, आपको यकीन था कि आप इसको मारेंगे? हाँ जरूर यकीन था, क्योंकि कल मैंने यूट्यूब पे इनका पूरा मैच देखा था। आरिफ, मेरे को मालूम है कि आरिफ ही लास्ट में आने वाले बॉलिंग के लिए, तो इनको मैच देख के मैंने लास्ट का, जैसे आपने बोला कि जो बोल्ड हुआ था फुल टॉस बॉल पे बाउंड्री के खिलाफ, तो मैंने देखी थी पूरी मैच। इस मैच को बहुत डैशिंग अंदाज में जीता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत गलतियां बल्लेबाजी में रही है, क्या सारा इंडियंस अगले मैच में सुधार कर आएंगी? सारा इंडियन के 3 प्लेयर आज आए नहीं है खेलने के लिए, उसकी वजह से नए जो चेहरे हैं आपको दिख रहे हैं, वो नए चेहरे हैं जो उनको अभी इस पिच का या इधर ग्राउंड का अनुभव नहीं है, इसलिए ये कम बैटिंग हुई थी। एक आखिरी सवाल कि इस टीम को आप किसके नाम देना चाहेंगे? ये टीम को हम पूरे टीम के नाम के, सारा इंडियन जो हमने नाम लिखा है, किसी का नाम नहीं है यहाँ पे। हमारे पिताजी है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, टीम के लिए, और हम सबके लिए श्रेय दे रहे हैं। तो बहुत बहुत मुबारक दिलीप पाटिल। ये थे दोस्तों गोल्डन 6 महेंद्र मागे के बाद लगाने वाले दिलीप पाटिल।